কিশোর সুরক্ষা অভিযানের যে গ্রাম সভা, এই গ্রাম সভাকে সম্বোধিত করার জন্য আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মাননীয় মুকুল রায় মহাশয়, রাজ্যের অন্যতম কান্নারি মাননীয় মুকুল রায় মহাশয়কে মঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। লক্ষাধিক লোকের জনসমাগমে উপস্থিত হয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির জগৎ প্রসাদ নাড্ডা। মঞ্চে রয়েছেন আমাদের এই রাজ্যের সভাপতি সাংসদ দিলীপ ঘোষ মহাশয়। মঞ্চে আরেকজন রয়েছেন যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবাংলার নির্বাচনের প্রহরী বিলাল বিজয়বর্গী। মঞ্চে রয়েছেন প্রাক্তন সভাপতি রাহুল, রয়েছেন একদম ডান দিকে আছেন আমাদের আরেক সাংসদ, প্রিয় সাংসদ স্বপন ঘোষ, স্বপন দাশগুপ্ত রয়েছেন। এবং আপনারা এই অগণিত জনসমাগম যারা আজকে এই মাঠে এসছেন, রয়েছে সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি, রয়েছে সাংসদ জগন্নাথ সরকার এবং রয়েছেন জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এটাকে ঘিরে যে অঞ্চল তার সমস্তটাই কৃষি প্রধান এলাকা। এবং আপনারা জানেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যিনি কৃষকদের প্রতি একটা সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে যে কিষাণ নিধি সম্মান দিয়েছিলেন, আজও সেই কিষাণ নিধি সম্পদ মমতা ব্যানার্জি কৃষকদের উদ্দেশ্যে দেয়নি, বরং রেখে দিয়েছে। আজকে এতদিন বাদে বলছে আমাদের দেওয়া হোক, আমরা দিয়ে দেব। আজকে এই সমাবেশে আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষের দুটো রাজ্য, একটা হচ্ছে হরিয়ানা আর একটা হচ্ছে পাঞ্জাব। সারা ভারতবর্ষে 24টা রাজ্য আছে। 24টা রাজ্যের মধ্যে মাত্র 2টো রাজ্যে আজকে তাদেরকে যে কোনোভাবে ভুলভাবে বাধ্য করে একটা কৃষক আন্দোলনের নামে নাটক বা প্রহসন চলছে। ভারতবর্ষে কিন্তু পশ্চিমবাংলা থেকে একটা কৃষককেও মমতা ব্যানার্জি ফাঁসলেও নিতে পারেননি এই আন্দোলনে। গতকাল শুনেছি যারা আন্দোলন করছে তারা বলছে সুপ্রিম কোর্টে যাবে, সুপ্রিম কোর্ট যাক, হাইকোর্ট যাক। ভারতবর্ষের মানুষ এই কিষাণ নিধি সম্মেলন নিয়ে, এই কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে তারা তাদের সুচিন্তিত রায় কিন্তু ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। 24টা রাজ্যের মধ্যে 22টা রাজ্য তারা আজকে এই কৃষকদের সম্মানের জন্য তারা কিন্তু মোদীজিকে বাহবা জানাচ্ছেন, ধন্যবাদ। আমি আপনাদের বলতে এসেছি আমাদের এই রাজ্যে নির্বাচন সামনে। এই নির্বাচনে বাংলার মানুষ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এইবারের নির্বাচনে তারা মমতা ব্যানার্জিকে বাংলা থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবে। এটা কিন্তু বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছেন আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি নাড্ডাজি। আপনারা জানেন এর আগের যে সভা, সেই সভায় নাড্ডাজির উপর হাঙ্গামা হয়েছে। ঘটনাচক্রে সেই গাড়িটা ঠিক পিছনে কৈলাসজির সাথে আমি দেখেছি যে তৃণমূল কত নৃশংস হতে পারে। এটা সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন, তার সত্ত্বেও তার গাড়ির ওপর হাঙ্গামা হতেও ভিন্ন মন্ত্র দিতে হয়। এখান থেকে আমাদের যেতে হবে অনেক দূর। আমি চলে যাব এখনই বর্ধমান, সেখানে আমি আমার বক্তব্য বিস্তারিত করতে চাইছি না। আমি সকলকে আবার বলি, একবার জোরহাত করে গোষ্ঠীবদ্ধ হাত দিয়ে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি।
ভারতীয় জনতা পার্টি। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পরবর্তী বক্তাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মুকুল রায় মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এরপর আপনাদের সামনে সভাকে আলোকিত করতে আসছেন মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ মহাশয়। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम। আমি ভাষণ দিতে আসিনি, গত সপ্তাহে এসেছিলাম। আমি সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে কৃষকদের জন্য মাননীয় মোদীজি যে আইন পাস করেছেন, সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত কৃষক তার সঙ্গে আছেন। তাই মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভারতবর্ষের তথা বাংলার কৃষকদের সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত, তাদের উন্নতি চান, সেটা বলার জন্য। আমরা জানি গত বছর 2 টাকা 3 টাকা কিলো আমরা পেঁয়াজ বিক্রি করেছি, সেই পেঁয়াজ আমাদের 80 টাকা কিনতে হচ্ছে। এই রাজ্যের অবস্থা। যে আলু আমরা 5 টাকা কিলো বিক্রি করেছিলাম চাষিরা, সেটা আমাদের 45 টাকা কিনতে হয়েছে। আর এবারে 100 টাকা কিলো বীজ কিনে চাষ করছি, আবার হয়তো 5 টাকা বিক্রি করতে হবে। এই যে পশ্চিমবাংলার চাষিদের দুর্দশা, সেটা কেন্দ্র সরকার জানেন। তাই বছরে 6,000 টাকা দেওয়ার কথা ছিল, সারা দেশের 9 কোটি লোক পেল, বাংলায় কেউ পায়নি। এই দুর্দশা থেকে বাংলার চাষিরা মুক্ত হবেন তখনই যখন এখানে বিজেপি সরকার আসবে। তাই মাননীয় সভাপতি আপনাদের আশ্বাস দিতে এসেছেন যে কেন্দ্র সরকার পুরোপুরি বাংলার চাষিদের সঙ্গে আছেন। আর এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাকে আমি আহ্বান করছি, তার 80 বছর এবং আশ্বাসে বাংলার চাষিরা লড়াই শুরু করবেন, বাংলায় পরিবর্তন করবেন। নতুন বছরে নতুন সরকার আসবে, নতুন বাংলা তৈরি হবে, এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এরপর কিষাণ সুরক্ষা অভিযানের শুভ আরম্ভ করবেন। তার যে ভিডিও, সে ভিডিওকে উন্মোচন করবেন সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি মহাশয়। ওনাকে এই কিষাণ সুরক্ষা অভিযানের ভিডিও শুভারম্ভ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। শোনো শোনো চাষি ভাই, শোনো দিয়ামন, কৃষক সুরক্ষা অভিযানের বড় প্রয়োজন। কেন 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 বলি শোনো, কৃষক সুরক্ষা কার্ডে কৃষি উন্নয়ন দিয়ে কিষাণ ফসল বীমা যোজনা আয়োজন। এত আয়োজন, এত আয়োজন, গ্রাম সভাপতি চাল সংগ্রহ হবে তবে শেষে খিচুড়ির সাথে শপথ নিয়ে হবে কৃষক সুরক্ষা। ফসল বীমা যোজনা আর কিষাণ সম্মান নিধি হবে কৃষি ভাইদের আপন।
বর্ধমান পূর্ব লোকসভার সাংসদ মাননীয় সুনীল মণ্ডল মহাশয়, সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে শাল দিয়ে বরণ করে নেবেন। ওনাকে বরণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এরপর আমি ডেকে নেব এই এলাকারই কৃষক প্রতিনিধিদের, যারা মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে এক মুষ্টি অন্ন দিয়ে এই কৃষক সুরক্ষা অভিযানের শুভ আরম্ভ করার জন্য এবং কৃষক ভাইদের একটি ব্যাগ উপহার দিয়ে গ্রামে গ্রামে জনসম্পর্ক করা এবং এক মুঠো করে অন্ন সংগ্রহ করে গ্রাম সভায় অন্ন দিয়ে সহজ করার যে প্রক্রিয়া প্রকল্প নাড্ডাজি ঘোষণা করেছেন, তার শুভারম্ভ করবেন মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আপনারা দেখছেন এই এলাকার কৃষক প্রতিনিধি মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজিকে অন্ন দিয়ে এই কৃষক সুরক্ষা অভিযানের যে শুভ আরম্ভ করলেন। তাই এলাকার প্রত্যেকটি কৃষক বন্ধু চাষি ভাইদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ এলাকা এই কাটোয়া জেলা, কাটোয়া সামরি জেলা, পশ্চিম বাংলার শস্য গেলার গোলা হিসাবে পরিচিত। সেই শস্য গলায় আজ কিষাণ সভার যে শুভারম্ভ হল সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজির হাত দিয়ে। সেই কার্যক্রমের যে সন্ধিক্ষণ, আজ সেই সন্ধিক্ষণে পশ্চিম বাংলায় আগামী বিধানসভায় এরপর আমি বক্তব্য রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি মহাশয়কে মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে এই সাংগঠনিক জেলা কাটোয়ার যে কিষাণ সভা ওনাকে সম্মানিত করার জন্য মঞ্চে আসছেন সর্বভারতীয় সভাপতি। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, धर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्मानीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहां के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय मुकुल रॉय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहाँ आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है
ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्म भूमि के रूप में जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरविंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें, गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ। और किसान की आवाज क्यों न रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं,
किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ तो एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना चाहिए। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां, 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी को शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान देना। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले हैं और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। ये व्यवस्था की गई। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बोलो, इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है?
पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित। यह है अकर्म नेता, यह है यहां की सरकार, लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा। लेकिन मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, फिर चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो जन धन योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को और 1 करोड़ 11 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति साल का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए आपको पैसा दिया। लेकिन ममता जी ने 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत पहुंचाया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर को दिया जाएगा। यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर में ईस्ट वेस्ट मेट्रो का बन रहा है, लगभग 8,575 करोड़ रुपए का चूना, 3,665 नेशनल हाईवे बना है वेस्ट बंगाल में। ये मोदी जी ने किया है, ममता जी पीछे छोड़े ना, कोई कुछ करेंगी नहीं। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए आने वाले समय में अब दिल्ली में मोदी जी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमको काम करना। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहां का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी है। हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी, कॉटमनी, कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी है तो भय कहनो, है तो ভয় কেন কি হয়েছে? हर बात में बोलबे होबे ना, होबे ना, होबे ना। मई महीने में होबे, होबे, होबे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, आवे, आवे। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से विकास में, तो हमको मालूम है कि चौल चोर, त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी दे, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बांग्लार बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी समझ में आता है हमको, अपनी बाड़ी समझ में आता है मुझे। बांग्लार बाड़ी और ममता जी अपना मोहर लगाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बंगला ग्रामीण सड़क योजना। मोहर बदल देने से बंगाल के लोगों में मोदी जी के लिए दिल में जगह कम नहीं होती है, बढ़ती है। यह बात हमको समझनी चाहिए।
अरे मोदी जी का नाम कहां कहां से हटाओगे? वो तो दिलों में बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे हैं? बसे हैं कि नहीं बसे हैं? लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने दिन रात एक काम किया है, हर कुछ किया। आप बताइए, मोदी जी ने यहां ट्रेनें भेजी थी कोविड में कि नहीं भेजी थी? लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था नहीं किया था? किसने कहा था ये कोरोना कैरियर है? किसने कहा था? ये इनका बंगाल के लोगों के प्रति प्यार और समर्पण है। ये इनका समर्पण है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा। अगर मैं बात करूं तो ममता जी बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया है। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी कर दी। इसलिए मित्रों, यहां भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। यहां एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले, और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, जो गर्मजोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, ये जो मुझे यहां दिखने को मिला है। मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में एक नारा लगाऊंगा। ये नारा का जवाब भी आप नारे में ही देंगे। मैं कहूंगा, जय मां दुर्गा, जय मां काली। आप कहेंगे, शेष करो ऐ अत्याचारी। ठीक है? जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে। আর এরপর কৃষকদের সুরক্ষার এবং কৃষক সুরক্ষা অভিযানের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন মাননীয় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয়। আমরা সকলে উচ্চস্বরে সেই শপথ বাক্যকে গলা মিলাবো। এই 4 লাইনের শপথ সবাই বলবেন আমার সঙ্গে। বলুন। কৃষকের সার্বিক উত্তরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলার প্রত্যেক কৃষকের কাছে একান্তভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার জন্য রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার কৃষি পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও বাংলার কৃষকবর্গকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের আওতাভুক্ত করবে। বাংলায় এবার আসল পরিবর্তনের সময় এসেছে। বাংলার কৃষক সমাজের অভ্যুত্থান হবে,
প্রগতির জয়ধ্বজা বহন করে কৃষক সমাজ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য অগ্রসর হবে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আজকের কৃষক সুরক্ষা অভিযানের যে গ্রাম সভায় আজকের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সকলকে আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমরা কাটোয়ার সাংগঠনিক জেলার প্রত্যেকটি কর্মী তথা কৃষক বন্ধুদের আজকের এই সভায় আসার জন্য আজকের এই সভাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি মহাদেব সরকার মহাশয়কে আমি আবেদন জানাবো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য। ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, যার উজ্জ্বল উপস্থিতির ভেতর দিয়ে কৃষক সুরক্ষা অভিযান যে আন্দোলনের কর্মসূচি এই মঞ্চ থেকে আজকে উদ্ঘাটন হলো। মাননীয় সর্বভারতীয়